Hi guys, this is Sonam. Welcome back to my channel Enchanted Scholars Hub. This is our second session in the series of daily English dose. So we will do synonyms today. So let's start. First word is anguish. Anguish in Hindi, pida. Anguish means pain. Synonyms are torment and agony. If we use anguish in sentence like we can say a lot of anguish crossed the basketball player's face when he hurt his leg. A lot of anguish crossed the basketball player's face when he hurt his leg means जब बास्केटबॉल प्लेयर ने अपने लेग को हर्ट कर लिया तो उसके फेस पर जो पेन था वो इजीली देखा जा सकता था. सो नेक्स्ट वन अपालिंग. अपालिंग मीन्स भय उत्पन्न करने वाला. इन हिंदी भय उत्पन्न करने वाला. डैट मीन्स टेरिबल. Synonyms are horrific, shocking. In example, let's see. Earthquake of appalling severity shook the whole eastern part. Earthquake जो था जिसने पूरे ईस्टर्न पार्ट को शूक किया उसकी जो सीवेरिटी थी वो बहुत ही हॉरिफिक थी. Got it? Okay. Now move to next. Next one is amicable. That is snehi in Hindi you can call, and amicable means friendly. Synonyms are friendly, cordial. Means very much in closer to relation with. In sentence, let's see. He was an amicable fellow with a nice smile. मीन्स वो एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था जिसकी एक क्यूट सी एक नाइस सी स्माइल थी. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. अमिकेबल मीन्स फ्रेंडली. सिनोनिम्स आर फ्रेंडली, कॉर्डियल. मूव टू नेक्स्ट. अपलॉज. अपलॉज मीन्स टू प्रेज, किसी की प्रशंसा करना. लेट्स सी सिनोनिम्स. accolades, approbation. Accolades and approbations both are the synonyms of applause. Let's use in a sentence. She had a great round of applause in her drama. Means उसको अपना ड्रामा में बहुत ही ज़्यादा accolade किया गया, praise किया गया. Now next one. Boggy. Boggy means दलदली in Hindi and boggy means marshy. Synonyms fenny and quaggy. QUAGGY. Quaggy means जहाँ पर बहुत सारा दलदल हो. We can see in a sentence, the edge of the woods let out a boggy fen that is paradise for mosquitoes. मीन्स जो वुड है उसका जो एज है वो इतना ज़्यादा मार्शी है, इतना ज़्यादा फैनी है, इतना ज़्यादा क्वेगी है कि वो मॉस्किटो को ब्रीड करने के लिए बहुत ही एक पैराडाइज की तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट. एरिली. एरिली मीन्स लाइटली, लापरवाही से. सिनोनिम्स आर कैजुअली, ब्रीजली. We can use breezily in a very simple sentence that I really don't care, he replied airily. Means मुझे सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसने बहुत ही एरिली, बहुत ही ब्रीजली, बहुत ही कैजुअली रिप्लाई दिया लापरवाही से कि मुझे सीरियसली कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. होप यू गॉट इट. नेक्स्ट वन. अकिन. अकिन मीन्स होता है समान, सिमिलर. सिनोनिम्स आर क्लोज, करेस्पॉन्डिंग. सिनोनिम्स आर क्लोज और करेस्पॉन्डिंग.
Let's have in a sentence. What she feels for him is akin to worship. Means उसके लिए वो ऐसी फीलिंग रखती है जैसी वो पूजा करती हो. मीन्स वो उसके लिए पूजा की तरह ही, पूजा के समान ही बहुत ही खास है या फिर बहुत ही हॉली है उसकी फीलिंग्स उसके लिए. दैट इज़ करेस्पॉन्डिंग टू हिम लाइक अ गॉड. So his feeling, her feeling towards her is just close to her worship. Next one, blizzard. Blizzard in Hindi बर्फानी तूफान means snow storm. The snow storm, ऐसा storm जिसमें snow हो. Synonyms are blast, squall. SQUALL squall. Let's have in a sentence. We got stuck in a blizzard for 6 hours. Means हम 6 hour तक, 6 घंटों तक blizzard में फंसे रहे. blizzard में फंसे रहे. We got stuck in a blast. We got stuck in a squall in a blizzard for 6 hours. Next, blasphemy. ईश्वर निंदा. Blasphemy means profanity. Synonyms are sacrilege, irreverence. Means condemned to God. Condemned to God. When we condemn God, that is called as blasphemy. Let's see in a sentence. He was found guilty of blasphemy. Means उसको blasphemy का दोषारोपण किया गया. He was found guilty of sacrilege. He was found guilty of irreverence. Next one, baffling. Baffling means होता है उलझाने वाला. That is puzzling, very much puzzling. Synonyms are perplexing, mystifying. In a sentence we can say there are so many emerging thoughts in his head baffling him. Means उसके माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ रहे थे जो उसको बैफल कर रहे थे, पजल कर रहे थे, परप्लेक्स कर रहे थे, मिस्टिफाई कर रहे थे. मीन्स उलझा रहे थे. नाउ नेक्स्ट, फेटस. FATUOUS. फेटस. फेटस मीन्स होता है डल, मूर्ख. Synonyms are absurd, asinine. Synonyms are absurd, asinine. In a sentence, Suzanne fatuous spending put her in the debt. मीन्स सुजैन की जो बेवकूफ़ी वाली स्पेंड करने की जो हैबिट थी उसने उसको डेप्ट में डाल दिया. दैट वॉज हर एब्सर्ड स्पेंडिंग. दैट वॉज हर एसिनाइन स्पेंडिंग. आई होप यू गाइज गॉट क्लियर. नेक्स्ट, एक्सटॉल. एक्सटॉल मीन्स होता है टू लॉर्ड, बहुत ज़्यादा किसी की प्रशंसा करना. व्हेन वी प्रेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेसिवली एनीवन, वी यूज़ एक्सटॉल. सिनोनिम्स आर एक्साल्ट, ग्लोरीफाई. जब हम किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं, उसको सिर पे बिठा लेते हैं. दैट वी यूज़ एक्सटॉल. In a sentence, we can use the teacher was extolling her work to the skies. Means जो टीचर था उसने उसके काम को बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल स्काइज तक उसको एक्सटॉल कर दिया. मतलब जितना वो डिज़र्व करती थी या फिर जितना उसका वर्क था उससे कहीं ज़्यादा उसको एक्सटॉल किया. दैट मीन्स उसको ग्लोरीफाई कर दिया, उसको एक्सॉल्ट कर दिया. नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन, सिद्धांत, बिलीफ. सिनोनिम्स आर डॉगमा, DOGMA डॉगमा, प्रिंसिपल. डोंट कंफ्यूज इट विद प्रिंसिपल. दिस इज PLE not PAL. PAL is in the school, principal. Okay.
In sentence, let's see, this doctrine will surely lead to a lot of bad behavior. Means ये जो belief है, ये जो सिद्धांत है, ये जो dogma है, ये जो principle है, definitely इसकी वजह से बहुत सारे bad behaviors होंगे. Fine. Next, Genesis. Genesis means होता है प्रारंभ, beginning, starting, origin. Synonyms are beginning, outset. In sentence, the resemblance to Genesis will of course be noted by all in these two stories. Means ये जो दो स्टोरीज़ हैं, इनकी जो ओरिजिन है वो ईज़िली हर कोई नोटिस कर सकता है. मीन्स जो दो स्टोरीज़ हैं उनकी जो ओरिजिन है, जो उनकी बिगनिंग है, आउटसेट है, वो लगभग सेम ही है. नेक्स्ट, fallacious, that is भ्रामक, deceptive. Synonyms are delusory, erroneous, means धोखा देने वाला, deceptive, जो हमें बेवकूफ़ बनाए, जो हमें कंफ्यूज करे, भ्रामक. His argument is based on the fallacious reasoning, means उसके जो arguments हैं वो completely deceptive, delusory, erroneous argument है, वो उन पे based है उनकी reasoning. means जो अपने arguments के पीछे जो भी reasoning दे रहा है वो completely deceptive है, delusory है, erroneous है, वो किसी की समझ में नहीं आने वाले. Next one, futile. Futile means व्यर्थ, fruitless. Synonyms are abortive, hollow. Unfortunately, all the rescue efforts were futile during the hurricane. Means हरिकेन के टाइम जो भी हमने रेस्क्यू या जो भी रेस्क्यू एफर्ट्स हुए वो सारे वेस्ट हो गए, फ्रूटलेस थे, अबॉर्टिव साबित हुए, हॉलो हुए. क्यों? क्योंकि उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला. फ्यूटाइल मीन्स जिसका कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट ना निकले. दैट डजेंट हैव एनी फ्रूटफुल रिजल्ट. नेक्स्ट, डेक्सटेरिटी मीन्स स्किलफुलनेस, चतुराई, डेफ्टनेस. सिनोनिम्स आर क्राफ्ट, आर्टिस्ट्री. हिज डेक्सटेरिटी वॉज अमेजिंग टू बी इम्प्रेस्ड. मीन्स उसकी जो चतुराई थी, उसकी जो डेफनेस थी, उसकी जो क्राफ्ट थी, उसकी जो आर्टिस्ट्री थी, दैट वाज अमेजिंग, जिससे हर कोई इम्प्रेस हो गया. नेक्स्ट, जिटरी. जिटरी मीन्स होता है घबराया हुआ, एजिटेटेड. मीन्स बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वो घबराया हुआ है लेकिन वो शो नहीं कर रहा है. उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिना बोले ही उन एक्सप्रेशंस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि वो घबराया हुआ है. सिनोनिम्स आर जंपी, एंशियस. लेट्स हैव इन अ सेंटेंस, ही वॉज जिटरी वाइल टेकिंग हिज फर्स्ट इंटरव्यू. जब वो अपना पहला इंटरव्यू दे रहा था तब वो बहुत ही ज़्यादा जिटरी था. ही वॉज वेरी मच जम्पी, ही वॉज फीलिंग एंक्शियस, ही वॉज फीलिंग एजिटेटेड वाइल ही वॉज टेकिंग हिज फर्स्ट इंटरव्यू. नेक्स्ट वन, घैसली. घैसली मीन्स फ्राइटफुल, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, अत्यंत अप्रिय. सिनोनिम्स ग्रिम, हॉरिबल. हॉरिबल जो बहुत ही भयानक हो, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा ना लगे. शी वोक अप इन द मिडल गैसली नाइट मेयर. मीन्स वो अपने रात में सपने देखते हुए बहुत ही जो फ्राइटफुल, जो बहुत ही हॉरिबल, जो बहुत ही ग्रिम जो उसके सपने थे उसको देख करके वो डर गई और वो उठ गई. सो फ्राइटफुल, गैसली, क्लियर. नेक्स्ट, इल ब्रेड. इल ब्रेड मीन्स होता है गंवार, बैड मैनर्ड. सिनोनिम्स आर बुरिश, churlish. We can see here in a sentence, this child is ill bred,
he annoys the people with his words and behavior. मीन्स जो ये बच्चा है ये इल ब्रेड है, मीन्स बहुत ही बैड मैनर्ड है और ये लोगों को अपने वर्ड्स से अपने बिहेवियर से बार बार अनॉय करता है, परेशान करता है. सो गाइस, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा. मैंने इस सिनोनिम्स को हिंदी में इसलिए करके बताया ताकि आप इजीली इनके सिनोनिम्स को समझें और आपको समझने में, याद करने में इजी हो. So guys, that's all for today. I hope you must have enjoyed this class. So guys, please let me know that in comment box. Please don't forget to like, subscribe and share this channel. See you all in next class, and till then take care and bye bye.